Alright guys, now in this lecture we are going to talk about some basic concepts which are required to start with the first chapter of your science. I'm talking about the 9th standard people. Now guys, you know that science has the main three branches, that is physics, chemistry and biology. So more or less the physics and chemistry part we will be seeing in the science 1, the biology part we will be seeing in the science 2. Alright, now the first chapter guys, your first chapter is all about the physics, but more specifically it is about your kinematics, in which we deals with the speed, velocity, distance, displacement, force. Okay, now before moving to that part, let me tell you यार जो अपनी ये पूरी दुनिया है, ठीक है, सो दिस एंटायर वर्ल्ड, इस एंटायर वर्ल्ड का जो वर्किंग है, दैट वर्किंग इज बेस्ड ऑन द सम बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज. Those are also called as a fundamental quantities. ठीक है, तो what are those fundamental quantities guys, जिसके ऊपर एक पूरी दुनिया बसी है? That is nothing but your length, mass and time. The length, mass and time. When we talk about length particularly, so in length there are subtypes like distance. So guys, when we talk about the distance from one point to another point, at that time we actually tell the length. We actually tell the length of the path. Okay, when we talk about the displacement, people, displacement we are going to talk about in this chapter only. So displacement is what the minimum distance between any two points. That is the straight line joining any two points. That is nothing but the displacement. So guys, displacement, what I tell just now, the displacement is minimum distance between any two points. So displacement is nothing but distance and distance is nothing but length. So ultimately your displacement will also become the length. When we talk about the height, जब हम लोग किसी बंदे का height measure करते हैं ना people, तो height मतलब क्या, actually उसकी body का length ही measure कर रहे होते हैं, ठीक है. Depth means what, जैसे हम लोग को बोरवेल बनाना है या फिर कुआं खोदना है, तो हम लोग जाएंगे ना अंदर, गहराई तक जाएंगे. अरे भाई 10 मीटर अंदर जा, 5 मीटर अंदर जा, 2 मीटर अंदर जा, इसका मतलब दैट डेप्थ इज आल्सो द लेंथ बट बिलो द अर्थ सरफेस, ठीक है. ऑलराइट, दैट इज द लेंथ. व्हेन वी टॉक अबाउट द मास ना पीपल, सो मास को थोड़ा समझने के लिए आपने को समझना पड़ेगा एक छोटा सा डेफिनेशन आप मन में बिठा लीजिए. मास इज बेसिकली डिसाइडेड बाय द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिसाइडेड बाय द अमाउंट or the total content in the object, like if I talk about the human body, so human body is all, in your human body we have bones, right, we have muscular part, we have our internal organs. तो इन सभी को मिला के जो बनेगा, right, so that will give you the idea कि यार मेरा या फिर मैं कितना भारी हो सकता हूँ या कितना हल्का हो सकता हूँ. तो गाइस, जो हम लोग एक्चुअली वेट बोलते हैं ना, वो आपका वेट, ठीक है, वो वेट जो है वो आपका एक्चुअली होता है मास, ठीक है. सो जो हम लोग अपने बॉडी के बारे में बोलते हैं, ठीक है, तो जितना ज्यादा कंटेंट रहेगा उतना अपना मास ज्यादा रहेगा, ठीक है. वेट का डेफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट है. सो लेट्स सी, दिस पार्ट इज एक्चुअली ऑफ द 10th स्टैंडर्ड, बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा मैंने ट्राई किया है आपको डिफरेंस एक्सप्लेन करने का. सो ये द कंफ्यूजन बिटवीन द मास एंड वेट पीपल. तो मास इज व्हाट द कंटेंट ऑफ एनी मैटर. यहाँ पे दो एग्जांपल है, मोटू है, पतलू है. मोटू का मास है 70 केजी, पतलू का मास है 30 केजी. तो मोटू में बेसिकली कंटेंट ज्यादा है, कंटेंट ऑफ एनी मैटर. सो दिस मोटू इज द मैटर, राइट. सो इसका कंटेंट ज्यादा है, इसके लिए इसका मास ज्यादा है. इसका कंटेंट कम है, इसके लिए इसका मास भी कम है, ठीक है. सो द मास इज ऑल अबाउट द कंटेंट ऑफ मैटर. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द वेट ना पीपल, सो व्हाट इज योर वेट, इसका डेफिनेशन ध्यान से देखो. फोर्स अप्लाइड बाय मैटर ऑन द अर्थ मींस व्हाट. अगर सपोज मैं अर्थ पे खड़ा हूं, ठीक है, आई एम हैविंग माय सर्टेन मास, सपोज से 60 किलोग्राम. तो 60 किलोग्राम इज माय मास and not my weight. Okay, so 60 kilogram is my mass. What I will do when I'm standing on the earth, I'm actually applying some force on the earth. ठीक है, अरे जोर लगा रहा हूँ अर्थ पे, मैं भले ही खड़ा हूँ, but because of my entire body
I am actually applying the force on the surface of earth, and the force that I am applying on the surface of earth, that is nothing but my weight. That is nothing but my weight. तो आप जो वजन काटा पे कैलकुलेट करते हो, जो मेजर करते हो, वो आपका वेट होता है, ठीक है, बट दैट वेट इज नथिंग बट द फोर्स विच इज यू आर अप्लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. ऑलराइट, जो वेट आप मेजर करते हो, दैट वेट विल बी ऑलवेज greater than your actual mass. आपका एक्चुअल मास वेट से कम होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, W वेट नथिंग बट आई टोल्ड यू वेट इज नथिंग बट द फोर्स दैट वी आर अप्लाइंग. फोर्स इज इक्वल्स टू m इनटू g. ये g का वैल्यू जो होता है 9.8, विच इज कांस्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, 9.8, ठीक है. तो अगर ये मोटू एंड पतलू है, कैन यू सी दिस एरो आई हैव शोन, तो ये लोग अर्थ सरफेस पे खड़े हैं, मतलब ही दे आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट द वेट. ओके, सो लेट्स कैलकुलेट वेट विद द हेल्प ऑफ मास. तो मोटू का मास कितना है 70 kg, तो मोटू का वेट कितना रहेगा, दिस फॉर्मूला वी विल अप्लाई मास इनटू g. तो 70 into 9.8, आंसर कितना है 686. This and stands for Newton. Okay, so this Newton is the unit of force and is also the unit of weight. तो guys weight जो है वो एक्सप्रेस करेंगे न्यूटन में, ना कि किलोग्राम में. तो आप जो रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हो कि यार मेरा वजन 50 किलोग्राम है, ठीक है, मेरा वजन 50 किलोग्राम है, मेरा वजन 60 किलोग्राम है, तो पहली बात जो 60 किलोग्राम आप बोलते हो, दैट इज योर वेट, बट द यूनिट दैट यू आर अप्लाइंग, जो किलोग्राम यूनिट आप दे रहे हो, दैट यूनिट इज ऑफ द मास. ओके, एंड योर एक्चुअल मास इज लेस देन द वेट यू मेजर. ओके, जैसे पतलू का भी निकाला, पतलू का एक्चुअल मास जो है, उसके पूरे बॉडी के बोन्स, मसल्स, ऑर्गन्स, उन सबको मिला के उसका जो मास है, दैट इज योर 30 किलोग्राम. बट व्हेन वी कैलकुलेट दिस बाय दिस फॉर्मूला 30 into 9.8, we will get 294 न्यूटन. सो उसका वेट कितना रहेगा 294 न्यूटन. तो आज के बाद आप जब आपका वेट बताएंगे, ठीक है, तो न्यूटन लगाना मत भूलिएगा. ओके, alright, so guys the mass will tell you कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हैवी है या तो कितना लाइट है, ठीक है. नाउ टाइम के बारे में आपको सबको पता है, सो देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय टाइम, ठीक है. नाउ हियर द मेन थिंग वी आर स्टार्टिंग नाउ, दैट इज नथिंग बट योर यूनिट. सो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट गाइस. देखो, अगर सपोज किसी ने मेरे को वजन पूछा या फिर हाइट पूछा, तो नॉर्मली हम लोग हाइट कैसे बताएंगे, सर 150. अरे व्हाट इज 150? 150 मीटर, 150 सेंटीमीटर, 150 किलोग्राम की 150 लीटर, है ना. तो हर एक क्वांटिटी को सिर्फ नंबर के तौर पे हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. उस नंबर के साथ क्या चाहिए, यूनिट भी चाहिए. क्या चाहिए, यूनिट भी चाहिए. किसी ने बोला चलिए सर अगर पानी का बॉटल है, तो पानी का बॉटल कितने का है, तो उसने बोला सर 1. सर एक पानी का बॉटल है, एक का है. एक का मीन्स व्हाट, वी शुड spell or we should tell that 1 liter, not spell, but we should tell 1 liter. So liter is the quantity, or we can say the liter is the unit of that quantity. Okay, so guys the basic thing is that to represent every physical quantity we require the unit. Without unit we can't express the physical quantity with the help of only number, ठीक है. सो यूनिट को एक्सप्रेस करने के दो सिस्टम्स होते हैं. मेन अपना सिस्टम होता है एक MKS सिस्टम, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज SI सिस्टम, बट फॉर आवर रेफरेंस मैं उसको MKS ही बोलने वाला हूँ, ठीक है. MKS सिस्टम एंड CGS सिस्टम, राइट. ओके, ना देखिए
यहाँ पे कुछ बेसिक क्वांटिटीज के मैंने यूनिट लिखे जैसे लेंथ, मास एंड टाइम. सो गाइस MKS में कैन यू सी दिस M? So M actually stands for meter. That is nothing but the length of first fundamental quantity. K stands for kilogram. That is nothing but the unit of second fundamental quantity. S stands for second. That is nothing but the unit of third fundamental quantity. Okay. So this is your first system, that is MKS. अगर यही मैं दूसरे सिस्टम में बताना चाहूँ, that is nothing but CGS. So in CGS system, the first fundamental quantity, that is nothing but your length, will be expressed as centimeter. ठीक है? Then this G stands for gram, which represents your second fundamental quantity, that is mass. And again this S stands for second, which represents your third fundamental quantity, that is time. तो बात ये है, क्वांटिटी तो वही रहेंगे, लेंथ, मास एंड टाइम, लेकिन क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के तरीके दो हैं. एमकेएस तरीका, एमकेएस सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम. एमकेएस के यूनिट्स कुछ अलग बोलते हैं, सीजीएस के यूनिट्स कुछ अलग बोलते हैं. उसकी तरह कुछ क्वांटिटीज के भी मैंने बताया है, तो आप ये बाकी की दो नहीं करेंगे या फिर याद रखेंगे तो भी चलेगा. वैसे भी आगे हम लोग देखेंगे चैप्टर के टाइम पे डिटेल में. So these two quantities are here. First is your force. तो फोर्स का MKS में क्वांटिटी है न्यूटन. क्या है? न्यूटन, जो कि हम लोग ने अभी यहाँ पे देखा ना. The weight is nothing but the force and force का यूनिट is what? न्यूटन. तो न्यूटन उसका MKS सिस्टम का क्वांटिटी है और CGS में उसका यूनिट है डाइन. ओके. वर्क का MKS में क्वांटिटी है, MKS में यूनिट है ज्यूल, J फॉर ज्यूल, एंड CGS में यूनिट है अर्ग. ठीक है. वेलोसिटी और स्पीड के लिए सेम यूनिट रहेगा, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड. तो सीजीएस वाला आप भी गेस कर सकते हो, मीटर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर रहेगा और सेकेंड के लिए तो सेकेंड ही होता है. ठीक है. अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, ये सब क्वांटिटी देखेंगे हम लोग. इवन यू कैन वॉच माय प्रीवियस वीडियोस आल्सो ऑन द एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे क्या रहेगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. तो गाइस बेसिकली हर एक क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के दो तरीके होते हैं, एमकेएस सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम. अगर किसी ने मुझे बोला सर इसका लेंथ कितना है, इस टेबल का लेंथ कितना है, मैंने बताया उसको यार कि पकड़ लो 2 मीटर रहेगा, या 2 मीटर ज्यादा हो गया, चलो 1 मीटर रहेगा. कितना? 1 मीटर. तो मैंने जब बताया कि द लेंथ ऑफ टेबल इज 1 मीटर, मीन्स आई एम एक्सप्रेसिंग द क्वांटिटी लेंथ इन विच सिस्टम? MKS सिस्टम. 1 मीटर बोला ना, तो आई एम रिप्रेजेंटिंग इन द MKS सिस्टम. सामने वाले ने मुझे बताया कि सर मुझे MKS सिस्टम में नहीं सुनना है, क्योंकि हम लोग के कल्पना के कैलकुलेशन सब CGS में होते हैं. तो आप टेबल का लेंथ MKS में ना बताइए, आप टेबल का लेंथ CGS में बताइए. तो CGS में लेंथ का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर. तो जो 1 मीटर था, मैं ऐसे ही डायरेक्टली, अच्छा 1 मीटर ना, चल खाली यूनिट ही चेंज कर दे, 1 सेंटीमीटर. अरे 1 मीटर एंड 1 सेंटीमीटर बहुत फर्क गिरेगा ना बॉस. तो व्हाट वी नीड टू डू, जो मेरा एमकेएस का क्वांटिटी है 1 मीटर का, उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में. एंड यू ऑल नो दिस थिंग दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. तो 1 मीटर मतलब कितना हुआ? 100 सेंटीमीटर. तो मैं अभी उसको बताऊंगा, बॉस द लेंथ ऑफ टेबल इज 100 सेंटीमीटर. उसने बोला अच्छा ओके. ठीक है. तो we can talk about any quantities in both ways, MKS and CGS, depending upon the requirement. उनको क्या चाहिए? उनको MKS में सुनना है तो MKS में सुना दो, CGS में सुनना है तो CGS में सुना दो. Alright. Now गाइस, जैसे मैंने अभी बोला कि मीटर टू सेंटीमीटर में जाने के लिए मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई बाय 100 किया. राइट. तो वैसे there is a concept called as a conversion factor. क्या है? conversion factor. बात सुन लो गाइस, एकदम शांति से सुन लो गाइस. conversion factor is that number. conversion factor is that number which helps you to jump from MKS to CGS or CGS to MKS. अगर आपको किसी क्वांटिटी को MKS सिस्टम से CGS में कन्वर्ट करना है, या फिर किसी क्वांटिटी को CGS में से MKS में कन्वर्ट करना है, तो आपको एक नंबर पूरी सहायता करेगा
that is nothing but your conversion factor. That is nothing but your conversion factor. Let's talk about the conversion factor in more detail. Some quantities I have mentioned over here. The length we are talking about. So the MKS, in an MKS system, the length is given by meter, and in CGS it is given by centimeter. So how to jump from meter to centimeter? By multiplying with 100. By multiplying with 100. And then how to jump from centimeter to meter? By dividing with 100. By dividing with 100. तो आप देखेंगे कि नंबर सेम रह रहा है 100 100. खाली MKS टू CGS में जाते टाइम मल्टीप्लाई करेंगे एंड CGS टू MKS आते टाइम डिवाइड करेंगे. बात समझ रहे हो मेरी? बात समझ लिए. एग्जाम्पल उठा लेते हैं फटाक से. देखिए यहाँ पे द लेंथ इन MKS मेंशन्ड 11 मीटर, लेकिन उनको सुनना था CGS में, तो हम लोगों ने क्या किया, मीटर टू सेंटीमीटर जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100. सो आई विल मल्टीप्लाई 11 बाय 100, और जैसे ही मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, the meter will automatically turns into the centimeter, and the answer I will get as 1100 centimeter. So 11 meter is nothing but the 1100 centimeter. Alright, talk about the second conversion, that is if we have the length in centimeter, that is in CGS system, we can convert the quantity in CGS system into the MKS system. How? By dividing to the 100. By dividing 100. So here you can see the length is given as 500 meter. Length is given as 500 meter. Okay. So this one marker now. So here it is given as 500 centimeter. Means what? This length is given in the CGS unit, centimeter. Okay. Now to convert the centimeter into meter, I have to divide by 100. So this 500 will be divided by 100. और जैसे ही मैं डिवीजन करूंगा, वैसे सेंटीमीटर will become automatically meter. 0 cancel, I will get the answer as 5 meter. Okay. So this interconversion करने के लिए we want that one number. ठीक है, उस वन नंबर को हम लोग बोलेंगे कन्वर्जन फैक्टर. सो बाकी मैंने सब क्वांटिटीज का कन्वर्जन फैक्टर लिखा है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. अगर मास की बात करेंगे, सो टू जंप फ्रॉम किलोग्राम, दैट इज द यूनिट ऑफ एमकेएस सिस्टम, टू द ग्राम, दैट इज द यूनिट ऑफ सीजीएस सिस्टम, व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई विद 1000. एंड अगर रिवर्स आना है, दैट इज फ्रॉम ग्राम टू किलोग्राम वी हैव टू कम, वी विल डिवाइड बाय 1000. देन यहाँ पे मैंने करके दिखाया है, किधर गया, हाँ देखिए, मास आई मेंशन 900 ग्राम. I mentioned 900 gram is what the mass mentioned here in the CGS system. To get in the MKS system, I will gram to kilogram आने का ना, so to divide by 100. So 900 को we will divide by sorry my mistake. 900 को we will divide by 1000. We will get 9 upon 10, and this 9 upon 10 is nothing but 0.9 kilogram. Okay? जैसे डिवाइड करेंगे वैसे बन जाएगा किलोग्राम. ठीक है. Then टाइम के लिए देखिए सेकंड, वहां पे भी सेकंड है, यहाँ पे भी सेकंड है, तो कुछ कन्वर्जन की जरूरत नहीं है. ठीक है. फोर्स एंड वर्क के लिए व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर? फोर्स के लिए 10⁵ एंड वर्क के लिए 10⁷. एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइस, एमकेएस टू सीजीएस जाते टाइम मल्टीप्लाई करेंगे एंड सीजीएस टू एमकेएस आते टाइम डिवाइड करेंगे. ठीक है. हियर द फोर्स एमकेएस गिवन एज 5 न्यूटन, तो न्यूटन को कन्वर्ट करना है टाइम में. So I will multiply this 5 by 10⁵. जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा, the Newton will become dyne, and it will come as 5 lakh dyne. So 5 Newton is nothing but 5 lakh dyne. So this is how the conversion factor is going to help you out for the solving numericals also. And ये पार्ट आगे जाके भी आपका बेस बनेगा for the basically for numericals. ठीक है. Then in this chapter we are going to talk about some other quantities, like जैसे ये देखा distance, displacement, velocity, speed, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. एक्सीलरेशन एक बहुत अच्छा टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे. फोर्स के बारे में बात करेंगे. न्यूटन के जो 3 लॉज है, लॉज ऑफ मोशंस, उसके बारे में बात करेंगे. एंड लास्ट में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ ओके कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे. बहुत अच्छा सा डेरिवेशन है वहां पे. ठीक है. एंड सम एग्जांपल्स आर आल्सो देयर, सम न्यूमेरिकल एग्जांपल्स आर आल्सो देयर.
सो देखेंगे अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू सो मच.